me the recording. Okay, so can you see my screen? जी सर. Okay, so this is our topic today, emerging microbial issues in the Anthropocene, right? So what are the emerging microbial issues जो आजकल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. तो we start with that. First, एक नया लफ्ज आपने सुना है, Anthropocene. So what does Anthropocene means? It can be defined as the influence of human activities. जैसे anthropogenic नहीं होता. So the Anthropocene can be defined as the influence of human activities on the global ecosystem, consisting of, when we say ecosystem, it consists of all the lithosphere, the hydrosphere, and the atmosphere, all of which potentially contain microorganisms. अब तक हम ये बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि वो लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो या एटमॉस्फेयर हो, हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं. ठीक है. सो हाउ द human activities, they affect the global ecosystem. That is what we are going to discuss. There are some of the major global microbial issues that have been impacted by human activities. आजकल ऑफ कोर्स आप किसी से भी पूछेंगे मेजर ग्लोबल माइक्रोबियल इशू क्या है, तो वो सबसे पहले आजकल तो कोविड का नाम लेगा. ठीक है. सो दिस इज another rather the very recently emerged issue is that of the COVID-19. Some of these issues are directly caused by adverse human activities. अब कोविड के बारे में तो हम ये नहीं कह सकते, but some of these issues are directly caused by adverse human activities such as pollution. Pollution की वजह से ये problems cause हो रहे हैं. कुछ problems related to global warming हैं and antibiotic resistant bacteria हैं. ठीक है. सो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है and which ultimately affect the microbial activities or the microbial diversity and their activities. First of all, we take up the microbial contributions to the climate change. How microorganisms they are contributing to climate change. तो थोड़ा सा हम पढ़ भी चुके हैं, वो अगर आपको याद हो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का हमने चैप्टर पढ़ा था कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो उसमें हमने थोड़ा इसको टच किया था. सो क्लाइमेट चेंज, यू नो, these are due to one of the major factor for the climate change phenomena is the production of greenhouse gases. So we are going to discuss these greenhouse gases. What is the role of microorganisms? So microbial activities influence formation of greenhouse gases, including nitrous oxide, methane, and carbon dioxide. And these, you know, are the major cause of global warming. ठीक है. So how the microorganisms are contributing to the climate change? We said that the greenhouse gases are actually responsible for the process of climate change or for the process of global warming, and that process is caused by these greenhouse gases, nitrous oxide, methane, and carbon dioxide, and these gases are produced by the microorganisms. So this is how the microorganisms are involved in the process of global warming. The driving force for carbon dioxide is fossil fuel and land use change. So this is the major driving force for the production of carbon dioxide. You burn fossil fuel and
you change the land use, right? So as a result, the carbon dioxide is released to the atmosphere. Then nitrous oxide is the agricultural practices, burning of biomass, and combustion of fossil fuels, and chemical manufacturing of nylon. These are responsible for the release of nitrous oxide to the atmosphere. And the residual time of nitrous oxide is more than 100 years. ये हम उस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं जो अभी मैंने आपको याद दिलाया था, ठीक है. So its residence time is more than 100 years, and it is efficient in absorbing long wave radiation. One molecule of nitrous oxide is equal to about 200 molecules of carbon dioxide. So that's why it is considered as more toxic, more problematic compared with the carbon dioxide. कि it is जितना नुकसान 200 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के काज करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल उतना डैमेज काज कर देता है. And the photolytic conversion of nitrous oxide to nitric oxide is the contributor to ozone depletion. ये भी हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, इक्वेशंस मैंने आपको दिखाई थी. So this is actually the global atmospheric concentrations of selected greenhouse gases. So these values may change slightly because this is the data from 2001. So that might have changed by now. But this is just to give you an idea that this was the, sorry. So this is the pre-industrial value of carbon dioxide, methane, nitrous oxide, SF6, and CFC. This is in 2004, and this is the atmospheric lifetime years. What is going on in the atmosphere? Microbially mediated or anthropogenic parts per million, and this is only anthropogenic, right? So this is, I have already explained. I have just tried to recall that this we did discuss in the in our that chapter where we discussed the consequences of biogeochemical cycles, how the ozone is produced, and how that ozone is responsible for the conversion of nitric oxide, and how that nitric oxide is ultimately responsible for the depletion of ozone layer, right? So what are the strategies to reduce biogenic nitrous oxide emissions from agriculture? So agriculture में nitrous oxide की जो emissions हैं उनको reduce कैसे किया जा सकता है? What may be the strategies? ये हमने पहले भी पढ़ी है लेकिन दोबारा repeat कर रहे हैं. The increased fertilizer use efficiency. We have to increase the fertilizer use efficiency ताकि fertilizers as such ना पड़ी रहें, क्योंकि वो जब as such पड़ी रहेंगी तो उनका loss होगा, और that may be in the form of nitrous oxide. And manage the amount and time of fertilizer application to a crop. कि आप टाइम और उसका रेट जो है, आप जितनी अमाउंट अप्लाई करनी है और जिस वक्त अप्लाई करनी है इसको मैनेज करें कि उतनी ही मिकदार में फर्टिलाइजर अप्लाई करें और उसी वक्त अप्लाई करें जिस वक्त उसकी ज़रूरत हो, ताकि उसका लॉस ना हो. Then minimize nitrogen losses in irrigated croplands through control of the timing and amount of irrigation. ठीक है. So आप उसकी जो लॉसेस होते हैं इरिगेटेड क्रॉप्स में उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से कि आप इरिगेशन का टाइम और उसकी अमाउंट उसको कंट्रोल कर लें. Then best management practices for fertilizer application and irrigation should be used. So these are some strategies to reduce the biogenic nitrous oxide emissions from agriculture.
Use of slow release fertilizers is another option. I need not to explain that, okay, how the slow release fertilizers, this can play role in the reduction of nitrous oxide emissions. Application of nitrification inhibitors, when there will be no nitrates, there will be no denitrification, and when there will be no denitrification, there will be no loss of nitrogen in the form of nitrous oxide. ठीक है. देन हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड की, हमने बात की नाइट्रस ऑक्साइड की. देन कम्स द मीथेन इमिशंस फ्रॉम लैंडफिल्स. जो लैंडफिल्स से मीथेन की इमिशन होती है, दैट इज अनदर कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस गैसेस. The formation of methane is called methanogenesis and is predominantly a microbial process, और ये microbial process है. The organisms responsible for this process are a group of obligatory anaerobic archaea, completely anaerobic, strictly anaerobic, obligatory anaerobic archaea हैं, और इनको हम मीथेनोजेंस कहते हैं. और जस्ट बाय द वे, मीथेनोट्रॉफ्स वो होते हैं जो मीथेन को यूज करते हैं. मीथेनोजेंस वो होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, और मीथेनोट्रॉफ्स वो होते हैं जो मीथेन मीथेनोट्रॉफ मीथेन यूज करते हैं, और जेंस फ्रॉम जनरेशन जो प्रोड्यूस करते हैं. Many of these are commonly found in wetlands and marine sediments where anaerobic conditions prevail. However, methane emissions due to anthropogenic activities include emissions from landfills and paddy fields. Paddy fields particularly are one of the major contributors to the methane gas because हमारे यहाँ खास तौर पे, क्योंकि जो पैडी फील्ड्स हैं, हम नॉर्मली फ्लडेड राइस ग्रो करते हैं, तो उस फ्लडेड राइस में से फिर एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, और वहाँ से फिर मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है. मीथेन इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस after water vapor and carbon dioxide, and has 25 times the global warming potential of an equal mass of carbon dioxide. So global warming potential मीथेन का कार्बन डाइऑक्साइड से 25 times ज़्यादा होता है. It has been estimated that 1 ton of deposited municipal solid waste results in 160 to 250 cubic meter of landfill gas. So अगर 1 ton म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आप लैंडफिल में रखें, तो उससे 160 से 250 क्यूबिक मीटर तक मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है. लैंडफिल क्या होती है, मॉडर्न लैंडफिल्स क्या हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट फोकसिंग मोर ऑन दीज टर्म्स, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दीज टर्म्स. Then is this was we studied first the greenhouse gases or the global warming. Then the second process is the global change and microbial infectious diseases. How the global changes and microbial infectious diseases are related. How the global changes are affecting the microbial infectious diseases. So human activity directly affects the magnitude of exposure to pathogens that can be transmitted via the environment. So this is the human activity which is responsible to affect the magnitude of exposure. कि कितनी exposure होगी आपकी pathogen को, that those pathogens then can be transmitted via the environment. ठीक है, आपने एरोमाइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा कि कैसे पैथोजेंस मूव करते हैं, कि कैसे आपको याद होगा एरोमाइक्रोबायोलॉजिकल पाथवे, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे इसकी लॉन्चिंग होती है, फिर इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, और फिर डेपोजिशन होती है.
ठीक है. So the magnitude of exposure to pathogens that can be transmitted via environment that is affected by human activity. Human activities may not be directly involved. ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्टली हो. जैसे इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई. एक्सीडेंटली ये हो गया कि जो आपका ड्रिंकिंग वाटर था वो किसी चीज़ से कंटेमिनेट हो गया. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट बाय दी वे बात कर रहा हूँ, जैसे होता है बात का कि वो पता चलता है जी कि जी जितने लोगों ने चाय पी है जी वो सब लोग चाय जिन्होंने पी है जी वो तो सब की डेथ हो गई है. बाद में पता चलता है जी हुआ क्या था कि वो जिस बर्तन में चाय बनाई उन्होंने उसमें छपली गिर गई थी. दैट इज एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन ऑफ टी. सिमिलरली सी आपका जो वाटर टैंक है ऊपर उसमें कोई कंटेमिनेंट गिर गया है. ठीक है, तो दैट इज एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर व्हिच हैज रिजल्टेड इन दैट. ठीक है, से फॉर एग्जांपल कोई एनिमल उसमें गिर गया, उससे कोई पैथोजन प्रोड्यूस हो गए. ठीक है, तो वो पैथोजन जो थे उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को अफेक्ट किया और इस तरह से वो इन्फेक्शियस डिजीज काज हुई. Urbanization and deforestation can also cause immense changes in environmental systems that impact exposure to pathogens. ठीक है जी, ये जो शहर फैल रहे हैं, लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं एंड डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, ये भी इन्वायरमेंटल सिस्टम को चेंज कर सकती है और पैथोजेंस को एक्सपोजर बढ़ा सकती है. ये हम अभी पढ़ेंगे. Overall, microbial infectious diseases dwarf all other sources of human deaths annually. लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जितने अदर सोर्सेज हैं ह्यूमन डेथ के, ये इन्फेक्शियस डिजीज उन सब से ज्यादा है. उन सब को पीछे छोड़ देती हैं. इन्फेक्शियस डिजीज से जितनी डेथ्स हो रही हैं वो ज्यादा हैं कंपेयर्ड विद द अदर रीजंस ऑफ डेथ. In developing countries, microbial infectious diseases are clearly the leading agent of death. ठीक है? While in developed countries like America, heart diseases and cancer are more important. Although in United States, infectious diseases are still the third leading cause of death. अमेरिका में अगरचे हार्ट और कैंसर जो है ये मेजर काजेज हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे वहाँ पे भी जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं ये एक मेजर काज हैं जो तीसरे नंबर पे आती हैं. ठीक है, these are the leading causes of human deaths in developed versus developing economies. ठीक है, so you can say these are the causes like HIV and AIDS, lower respiratory infections and like other diseases. ठीक है, सिमिलरली इसमें ऑफ कोर्स अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगा. दैट इज अबाउट द कोविड, वो भी अब एक रीजन होगी. लेकिन स्टिल देखें ये कोविड की दहशत ज्यादा फैल गई है क्योंकि ये स्प्रेड ज्यादा होता है. अदरवाइज अभी भी अमेरिका में अगर आप देखें इवन इस कोविड से पहले भी ज्यादा डेथ्स, उनसे पहले भी हमने पीछे भी किसी चैप्टर में पढ़ा है कि इन्फ्लुएंजा से परहैप्स 5 मिलियन तक उनकी डेथ्स एनुअली हो जाती थी इससे. ठीक है, सो दीज आर काजेज ऑफ डेथ इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड दीज आर इन द नंबर ऑफ डेथ्स एनुअली. ठीक है, दीज आर नंबर ऑफ डेथ्स एनुअली इन डेवलपिंग कंट्रीज, causes of death in developing countries. Yeah, these are the deaths and these are the causes of death in developed countries. ठीक है, like this. So developing countries में these are major causes और developed countries में these are the major causes. Then how global warming affects the microbial infectious diseases. So global warming is occurring and that anthropogenic activities are at least partially to blame.
ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन एक्टिविटीज को कम अज कम कुछ हद तक इसका इल्ज़ाम ज़रूर जाता है। ये इस ग्लोबल वार्मिंग का कुछ हद तक इल्ज़ाम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जाता है। Currently, human activities add about 7 to 9 gigatons of carbon to the atmosphere as carbon dioxide, as well as other greenhouse gases that contribute to this process. ठीक है जी? So 7 to 9 gigaton carbon के या carbon dioxide एटमॉस्फेयर में लॉस होते हैं, जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। Severe weather events, including prolonged droughts in arid areas and excessive precipitation that results in flooding in other areas, can also affect the incidence of microbial infectious diseases. So, एक तो वो जो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं वो अफेक्ट करती हैं ग्लोबल इन्फेक्शियस डिजीजेस को। दूसरी क्या चीज, कुछ इलाकों में बिल्कुल ही खुश्की हो जाती है, बिल्कुल प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट्स हैं एरिड एरियाज में, और कुछ इलाकों में एक्सेसिव प्रेसिप, बहुत ज्यादा बारिशें हो जाती हैं जिससे उन इलाकों में फ्लड आ जाते हैं, विच कैन affect the incidence of microbial infectious diseases, जिसकी वजह से वो infectious diseases वहाँ पे फैल जाती हैं। Direct mechanisms for enhanced infectious disease due to global warming include enhanced incidence of vector-borne diseases, water-related pathogens, and water-based pathogens। ठीक है? सो इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों इन्फेक्शियस डिजीजेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो जाती हैं? द रीज़न इज एनहांस्ड इंसिडेंस ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। वेक्टर बॉर्न जैसे ये डेंगू है, इट इज वेक्टर बॉर्न, वाटर रिलेटेड पैथोजेंस एंड वाटर बेस्ड पैथोजेंस। ये सारे, जैसे हमने अभी बात की कि वहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, जब पानी खड़ा होता है तो वहाँ से फिर वाटर बॉर्न, वाटर बेस्ड पैथोजेंस पैदा होते हैं, या वेक्टर बॉर्न डिजीजेस वहाँ से फैलती हैं जो फिर दूसरी पॉपुलेशन में जाके इन्फेक्शन काज करती हैं। There are other ways in which humans impact the environment and influence infectious diseases. वो क्या है? Climate change induced drought combined with increasing human populations and demand for potable water। पॉपुलेशन बढ़ी है, जिसकी एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से खुश्की हुई, उस खुश्की की वजह से, ड्राउट की वजह से जो बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन की थी, उसकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई, पोर्टेबल वाटर की। दैट हैज़ स्ट्रेन्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर सप्लाईज, जिस पे पानी की फराहमी पे प्रेशर आया, and this has led to an increase in the consumption of fecally contaminated water, जिसकी वजह से खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज में लोग मजबूर हुए पानी की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करने पे, कि वो कंटेमिनेटेड वाटर को यूज करने पे मजबूर हुए। ये फोटाबाज, ये दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे क्या है कि वो लोग ये नहरों का पानी पीते हैं जो विच इज कंटेमिनेटेड, वो उसको सो क्या उसे कहते हैं, टोबा कहते हैं, उसका पानी पीते हैं ना, जो बड़े होते हैं वहाँ पे पानी आ जाता है और वो वहाँ से फिर उस पानी को यूज करते हैं। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज का फिनोमिना क्या है, ईदर टू मच ड्राउट और टू मच रेन्स, या बहुत ज्यादा खुश्की हो जाती है या बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। दोनों तरह से फिर क्या होता है कि पानी, अगर फर्ज करें ड्राउट है तो पानी की सप्लाई कम हो जाती है, लोगों को पानी की जरूरत होती है, तो वो पानी की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, पुअर क्वालिटी का पानी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो उसमें वो वेक्टर्स वगैरह जो होते हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो वहाँ पे ग्रो करते हैं और वो फिर इन्फेक्शन काज करते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी है कि मॉस्किटो वहाँ पे ग्रो करते हैं और मॉस्किटो फिर डेंगू काज करते हैं, डेंगू का वायरस होता है उसमें।
फ्लड्स कैन आल्सो एनहांस माइक्रोबियल इन्फेक्शियस डिजीज, जो मैंने जैसे अभी मिसाल दी आपको. In developed countries, excessive precipitation can result in storm water. वहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं जिससे तूफान आ जाता है. पानी का storm water loads that overwhelm wastewater treatment and drinking water treatment plants. इतना पानी आ जाता है कि उनके जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वो भी सारे उस रन ऑफ में आ जाते हैं, और वो that flood water carries with it the sewage, the animal manures and other sources of pathogens into the surface waters. इसीलिए आपने नोट किया होगा कि जब फ्लड वगैरह आती हैं तो फिर स्पेशली जो डीवीएम वाले लोग होते हैं ये एनिमल्स की भी इवन वैक्सीनेशन करते हैं कि उनको कोई डिजीज वगैरह ना हो. उसकी क्या होती है रीज़न कि उस फ्लड वाटर में 7 डिफरेंट पैथोजेंस या कंटेमिनेंट्स मूव करते हैं और वहाँ से वो फिर एक एनिमल से दूसरे एनिमल को फैलाने का बायस बनते हैं. This is just to give you an idea the influence of global warming on microbial infectious diseases. For example, severe weather events like floods, droughts, heat waves. Impact इनका क्या होता है? Vector and waterborne diseases increase. Example क्या है? Most waterborne outbreaks occur after above normal rainfall events. ठीक है? Enhanced sea temperatures, vector and waterborne diseases increase, and enhanced growth of Vibrio cholerae and increased malaria. Like that, similarly, decreased potable water sources result in waterborne disease increase and use of source water of a lower quality. And mosquito-borne microbial diseases, for example, malaria, dengue fever, Rift Valley fever, and encephalitis, जो भी डिजीज का नाम है आप इसको बस ये ज़हन में रखें कि ये डिजीज़ हैं जो मॉस्किटो की वजह से फैलती हैं. Then comes the next urbanization and deforestation. कि urbanization and deforestation कैसे रिस्पॉन्सिबल है फॉर काजिंग द डिजीजेस. हमने अभी कहा था ना कि urbanization और deforestation रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कैसे? Urbanization can affect the incidence of microbial disease both positively and negatively. In developing countries, increased population growth within urban centers can lead to densely packed housing and inadequate water supplies, leading to enhanced waterborne diseases due to poor sanitation. आबादी ज़्यादा हो जाती है, लोग गांव से शहरों में आ जाते हैं, फिर क्या होता है बड़े शहरों में आप देखते हैं कि वहाँ पे फिर छोटे छोटे एक एक कमरे के घर में 10-10 लोग रह रहे हैं, फ्लैट सिस्टम आ जाता है, पानी की सप्लाई कम हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉपर सैनिटेशन भी नहीं हो पाती है वहाँ पे. कि जैसे फॉर एग्जांपल एक घर बना था, वो बना था 5 लोगों के लिए, उसमें आप 20 लोग रहने लग गए हैं तो क्या होगा? उसकी सैनिटेशन पुअर हो जाएगी, पानी की सप्लाई और कम हो गई है. सो इस वजह से दैट पुअर सैनिटेशन पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज दैट रिजल्ट्स इन द प्रॉब्लम ऑफ supply of infectious diseases. Interestingly, the incidence of vector-borne diseases has been shown to decrease during urbanization. जो vector-borne diseases हैं urbanization से वो कम हो जाती हैं. क्यों? कॉमन सेंस की बात है. Because during urbanization जगह ही कम बचती है जहां पे पानी खड़ा हो और वहां पे मच्छर ग्रो कर सके. हर जगह पे तो आबादी हो जाती है, ठीक है, या अब वो कोई घर बना लेते हैं तो खाली जगहें कम बचती हैं जहां पे मच्छर वगैरह ग्रो कर सके. सो इस वजह से अर्बनाइजेशन इन ए वे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को कम भी करती है. इसलिए हमने कहा था कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से अफेक्ट करती है. However, urbanization can also result in the creation of new pools of water such as dams, rice paddies, or artificial wetlands, which serve as habitats that can enhance vector-borne disease, including malaria.
अगर नुकसान है तो फायदा है तो नुकसान क्या है कि आप उन लोगों की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए डैम्स बनाते हैं, राइस ज़्यादा ग्रो करते हैं पैडीज में, आर्टिफिशियल वेटलैंड्स बनाते हैं, तो वहाँ पे पानी खड़ा होता है इन जगहों पे, और जब पानी खड़ा होता है तो वहाँ से फिर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस पैदा हो सकती हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली दिस मलेरिया. Urbanization is also associated with cover changes that affect the incidence of infectious disease. के cover changes means कि वो खाली जगह है, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, पानी खड़ा है या उसके ऊपर बिल्डिंग है. Such anthropogenic land surface changes include, वो क्या हो सकती हैं? Deforestation, आप जंगल काट देते हैं कॉलोनी बनाने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन, सड़क बना देते हैं, एग्रीकल्चरल इंक्रोचमेंट, अर्बन सप्राल, शहर फैल रहे हैं जो, एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सच एज माइनिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग. ये सारी क्या है? these change the use of surface, land use pattern, उसको चेंज करती हैं, ठीक है. In many instances, urbanization and deforestation can result in increased contact between humans and an infectious agent. So जब urbanization ज़्यादा होती है, deforestation ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि in general ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स और इन्फेक्शियस एजेंट्स के दरमियान कांटेक्ट हो. सो इसी वजह से अब फॉर एग्जांपल ये जो कोविड की डिजीज़ है, इसमें भी तो हमें यही इन एडवाइस की जा रही है ना कि आप लोग ज़्यादा रश वाली जगहों पे ना जाएं. क्यों? इसीलिए कि वहाँ पे कांटेक्ट का चांस ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि एक बंदा इन्फेक्टेड हो तो उसको आप टच करें, उससे आपके हाथों में लगे, आपके हाथ फिर आपके मुंह को टच करें या आपके नोज़ को टच करें, आपकी आंखों को टच करें, तो वायरस वहाँ पे ट्रांसमिट हो जाए. ऑल दीज आर द इन्फेक्शियस इश्यूज. Also of concern are the zoonotic pathogens. This is very important. Zoonotic pathogens, ये जो आपने पेट्स रखे होते हैं घरों में, जो एनिमल्स रखे होते हैं, उनसे भी पैथोजेंस फैलते हैं. जूनोटिक पैथोजेंस ऑफ नॉन ह्यूमन ओरिजिन, लाइक आपने कैट रखी है, अगर आपने उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो उससे भी कुछ पैथोजेंस हो सकते हैं जो आपसे, जो जिसने वो कैट रखी हुई है उसको लगे, उससे उसके दूसरे घर वालों को लगे. सो विद द पोटेंशियल फॉर अडेप्टेशन टू काज ह्यूमन इन्फेक्शंस, ठीक है, उनसे वो ह्यूमन इन्फेक्शन भी काज कर सकते हैं. कुछ तो ह्यूमन में इन्फेक्शन काज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जो इन्फेक्शन हैं वो ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो जाती हैं. जैसे इसके बारे में एक थ्योरी है, कहा जाता है कि ये कोविड भी एक्चुअली बैट्स से शुरू हुई थी. बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है. It is thought that microbial agents causing infectious disease in humans often originate from disturbances of the natural environment. So generally ये कहा जाता है, ये सोचा जाता है कि जो माइक्रोबियल एजेंट्स इन्फेक्शन काज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, वो कहाँ से आते हैं? वो उस वक्त पैदा होते हैं जब हम नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं. सो आम लोग जो वो क्या कहते होते हैं, ग्रीन पीस वाले जो लोग हैं, जो नेचर पे बिलीव करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब आप नेचर को डिस्टर्ब करते हैं तो यू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ, ठीक है. सो वन ऑफ द प्रॉब्लम इज when you disturb the nature, so people are of the view that you increase the probability of infectious diseases. Emerging microbial diseases can be caused by infectious agents of wildlife that either recently adapted to infect humans or were pre-adapted and come into opportunistic contact with humans, ठीक है. मेजर माइक्रोबियल डिजीजेस जो इन्फेक्शियस एजेंट से काज होती हैं खासतौर पे वाइल्ड लाइफ में, वो हैं दैट ईदर रिसेंटली अडेप्टेड टू इन्फेक्ट ह्यूमंस, जो अभी अडेप्ट कर गई हैं कि पहले वो वाइल्ड लाइफ की डिजीजेस थी
लेकिन अब वो ह्यूमन बीइंग्स में भी डिजीज काज करती हैं और वर प्री अडेप्टेड या पहले ही उन्होंने अडेप्ट कर लिया था एंड कम इनटू अपॉर्चुनिस्टिक कांटेक्ट, और वो इस मौके की तलाश में थी कि जो ही उनको मौका मिले वे ह्यूमन बीइंग्स को भी इन्फेक्ट कर दें। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन जिन्हें कहते हैं। Examples of such emerging pathogens include the HIV/AIDS virus, Ebola and West Nile virus। ठीक है, ये पहले से ही अडेप्ट कर चुके हैं, सो जो ही इनको मौका मिलता है ये प्रॉब्लम काज करते हैं। So then comes the microbial remediation of marine oil spills। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है फॉर समुद्रों में जो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, जो ऑयल पास का, ये पिछले दिनों में भी कोई तकरीबन कुछ महीने पहले एक शिप जो था उससे हुआ था कि वो लीकेज हो गई थी ऑयल की समुद्र में, ये हमारे कराची के साहिल के पास। So petroleum hydrocarbons occur naturally in all marine environments, with the result that numerous diverse microorganisms have evolved the capability to degrade similar hydrocarbons following an oil spill, as they utilize them as a source of carbon and energy for growth। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो इन हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन और एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज कर लेते हैं और इस तरह से उसको डिग्रेड करके अपनी कार्बन और एनर्जी वहां से हासिल करते हैं। सो फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप हो जाए तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप यूज कर सकते हैं फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ दोज ऑयल स्पिल्स। There are hundreds of species of bacteria, archaea, and fungi that can degrade petroleum. There are various factors affecting the microbial degradation of petroleum hydrocarbons. So, different तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिग्रेडेशन है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स की, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। इस पे डॉक्टर नईम असगर साहब ने एक प्रोजेक्ट भी चलाया है जिसमें उन्होंने पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिग्रेड किया था विद सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओवरऑल oil degrading indigenous microorganisms can play a significant role in the cleanup of marine oil spills। So जो indigenous microorganisms हैं जिनमें ये ability होती है कि वो oil को degrade कर सकती हैं, those can play a significant role in the cleanup of marine oil spills। So समुद्र में अगर कहीं पे oil spill हो जाए तो उसमें फिर ऐसे organisms role play कर सकते हैं। These are those factors which I mentioned, the factors affecting microbial degradation rates of petroleum hydrocarbons। So type of oil affect करता है, number of activity of oil degrading microorganisms, essential nutrients, environmental redox conditions, oil surface area, and dispersants। These are the different factors which affect the degradation of petroleum hydrocarbons by microorganisms। And finally, our last topic is antibiotic resistant bacteria। Bacteria are prokaryotic organisms, you know that. These have the ability to metabolize and replicate very quickly, and they are also very adaptable genetically। जेनेटिकली बड़ी जल्दी अडेप्ट कर जाती हैं और मेटाबोलाइज और रेप्लिकेट बड़ा क्विकली होती हैं। When confronted with an antibiotic, जब इनको किसी एंटीबायोटिक से सामना होता है, there needs only be one bacterial cell with a genetic or mutational change। तो क्या होता है जब इन बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से सामना होता है तो उन्हें क्या जरूरत होती है कि वो सिर्फ एक बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक या म्यूटेशनल चेंज आती है और उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है टू दैट एंटीबायोटिक। ठीक है,
और फिर वो जो बैक्टीरिया होता है that allows for the proliferation of antibiotic resistant bacteria। क्या बात मैंने की है, हमने पहले कहा था कि ये बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं और मेटाबलाइज भी बड़ा क्विकली होते हैं, अडेप्ट भी बड़ा जेनेटिकली बड़ा क्विकली करते हैं। तो जब किसी एंटीबायोटिक्स का सामना होता है उनको, तो वो क्या करते हैं, किसी एक बैक्टीरियल सेल में भी अगर जेनेटिक या म्यूटेशनल चेंज आ जाती है कि उस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट हो जाता है, तो वो एक बैक्टीरिया ही काफ़ी होता है कि वो क्विकली मल्टीप्लाई करता है और वहाँ पे फिर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है जो कि बैक्टीरिया जो कि रेजिस्टेंट होते हैं टू द एंटीबायोटिक। ठीक है, thus the more antibiotics are used, the greater the likelihood of antibiotic resistant strains developing। so जितने एंटीबायोटिक्स आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स डेवलप हो जाए। ठीक है, ये मैंने जो आपको मटेरियल भेजा था उसमें भी यही बात उन्होंने बताई थी। The greatest concern with antibiotic resistance is the potential for human pathogenic strains to become resistant to popular antibiotics, which subsequently cannot contain the infectious agent। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो खतरा है, जो परेशानी है, वो यही है कि जो पैथोजेंस हैं जो हमें सर्टन डिजीजेस काज कर रही हैं, माइक्रोबियल स्ट्रेन्स, ये माइक्रोबियल स्ट्रेन्स हम उनको ट्रीट करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, ये उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर रही हैं। तो जब इनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी या हो चुकी है, तो फिर वो दे आर नो मोर susceptible to that antibiotic। So with that antibiotic you cannot then control that pathogen। So फिर उस डिजीज को कंट्रोल करना हमारे लिए मसला बन जाएगा। Antibiotic drug resistance is the acquired ability of an organism to resist the effects of a chemotherapeutic agent to which it is normally susceptible। So antibiotic drug resistance का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म ये एबिलिटी हासिल कर लेता है कि वो उस केमिकल को जिसके अगेंस्ट वो पहले ससेप्टेबल था, जिससे वो मर जाता था, अब उसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। इसको हम एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गला खराब है और गला खराब होने के लिए आपने एरिथ्रोमाइसिन की टेबलेट ली। अब जो बैक्टीरिया थे, इफ दे डेवलप द रेजिस्टेंस टू दिस एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, देन अगली दफा जब आपका गला खराब होगा तो एरिथ्रोमाइसिन इफेक्टिव नहीं होगी, आपको कोई और एंटीबायोटिक यूज करना होगा जो इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो उस पर्टिकुलर पैथोजन को मार सके। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली द कंसर्न द वर्ल्ड ओवर। इतना ज्यादा ये कंसर्न है कि मैंने आपको जैसे एक क्लास में बताया था कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का एक इजलास में स्पेशल इस इशू को डिस्कस किया गया कि ह्यूमन पॉपुलेशन को कैसे इस ग्रोइंग थ्रेट से बचाना है। In general, there are two ways in which a microbe can become resistant। वो दो तरीके क्या हैं जिनसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। वन इज द म्यूटेशनल चेंज, कि उनमें म्यूटेशन हो जाती है, एंड दैट म्यूटेशनल चेंज इज स्पॉन्टेनियस। व्हेन वी से स्पॉन्टेनियस मींस एकदम से हो जाती है। वन वे microbes can become more tolerant of an antibiotic is to alter the target of an agent within the cell। ठीक है, सो एक तरीका क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जो टारगेट होता था जिस पे जाके एंटीबायोटिक ने काम करना होता था उसको चेंज कर देते हैं।
they become one way microbes can become more tolerant of an antibiotic is to alter the target of an organism. Okay, for example, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कहता है जी एक एंटीबायोटिक है वो जाके तो जो पैथोजन है उसकी सेल वाल को डैमेज करता है। अब म्यूटेशनल चेंज क्या है कि वो सेल वाल को रेजिस्टेंट बना देती है, उसमें कोई ऐसी चेंज आ जाती है कि उसकी सेल वाल फिर डैमेज नहीं होती है उस एंटीबायोटिक से। दैट इज म्यूटेशनल चेंज। And second way is introduction of foreign DNA. In this case, genes are obtained from other host microorganisms that offer protection against antibiotics. कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स से ऐसा जीन ले लेते हैं जो उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। So these are the two major ways how the microorganisms they develop resistance against certain drugs or antibiotics. Human activities such as land application of municipal biosolids or animal manures have been implicated as potentially increasing the concentrations of antibiotic resistance bacteria within soil. So हम soil में क्या कर रहे हैं, municipal biosolids यूज कर रहे हैं और एनिमल मेन्योर्स यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पोल्ट्री मेन्योर यूज करते हैं। अब बहुत कॉमन है ये कि जी पोल्ट्री मेन्योर को वो एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। सो जब उनके वेस्ट्स आप डालते हैं फील्ड में एज फर्टिलाइजर, तो at least some concentration of those antibiotics which also moves as residues with the fertilizer to the soil. So when those antibiotics move to the soil, so with the passage of time, the bacteria which are present in the soil, they may develop resistance against those antibiotics. Okay? So those bacteria will now become resistant to that particular antibiotic. Most concern over soil-borne antibiotic-resistant bacteria relates to the introduction of animal manures from swine, poultry, or cattle-fed antibiotics as part of their diet. So, जैसे मैंने अभी पहले बात की कि ज़्यादा कंसर्न इनका साइल बॉर्न एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का जो है वो कहाँ पे है, वहाँ पे जहाँ पे हम सवाइन, पोल्ट्री और कैटल को जो एंटीबायोटिक्स देते हैं वो उनका उनका वेस्ट मटेरियल हम एज मेन्योर हम यूज़ करते हैं। ऐसी स्वाइन, पोल्ट्री और कैटल जिनको हम एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं उनका वेस्ट मटेरियल जब हम सॉइल में यूज़ करते हैं तो दैट कैन cause this problem of soil-borne antibiotic-resistant bacteria. These are some commonly used antibiotics and their mode of action. Like chloramphenicol, it is a broad spectrum. Broad spectrum means effective against many pathogens, many strains of bacteria. ठीक है, erythromycin, tetracycline, ठीक है। So this is how the chloramphenicol, what is its mode of action? It inhibits protein synthesis by binding to 50S ribosomal subunit. ठीक है, वो जो हमने कहा था ना कि नेचर चेंज हो जाती है, तो दिस इज हाउ इट चेंजेस। एरिथ्रोमाइसिन ये क्या करते हैं, इट इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 15S राइबोसोमल सबयूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये पेनिसिलिन है, दिस इज मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होती है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होती है पेनिसिलिन एंड इट इनहिबिट्स सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान सिंथेसिस। उसकी पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं बनने देती है जिससे उसकी वाल जल्दी डैमेज हो जाती है। ठीक है, दिस इज हाउ दीज एंटीबायोटिक्स अफेक्ट। One area of concern is chickens which are fed with ciprofloxacin. ऐसा चिकन जिसको सिप्राफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है ये डाला गया है, तो वो चिकन जो है उसको उस पर फीड करना खतरे की बात होती है। Chicken are also frequently infected with salmonella and or campylobacter. Therefore, there is the potential for resistance to ciprofloxacin to increase.
since microorganisms develop resistance to this antibiotic fairly easily. So इनमें जो चिकन है इसमें फ्रीक्वेंटली सैल्मोनेला या कैंपिलोबैक्टर की इन्फेक्शन होती है, और ये आपको अगर याद हो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये सैल्मोनेला और कैंपिलोबैक्टर मीट के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है आगे ह्यूमन बीइंग्स में। अब उस चिकन को अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन देने की वजह से उस चिकन में जो सैल्मोनेला या कैंपिलोबैक्टर है दैट बिकम्स रेजिस्टेंट। अब ये सैल्मोनेला जब ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसमिट होगा तो वहां पे अब अगर आप ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन डालें देंगे उस ह्यूमन बीइंग को तो उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये सैल्मोनेला या कैंपिलोबैक्टर ऑलरेडी रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसीलिए एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कहता है कि ये ब्रॉयलर वगैरह का मीट जो है कम खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ये एंटीबायोटिक्स वगैरह बहुत यूज होती है। If a family consumes chicken that is not cooked properly, they may become infected with a ciprofloxacin resistant campylobacter. So वो फिर अगर कोई चिकन ले रहा है ज़्यादा और वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है तो क्या होगा कि उसको कैंपिलोबैक्टर की इन्फेक्शन होगी अगर, तो वो कैंपिलोबैक्टर जो होगा वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को रेजिस्टेंट होगा, लिहाजा उस ह्यूमन बीइंग को फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन से ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकेंगे, आपको उसको कोई और एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। Of additional interest is the fact that ciprofloxacin is one of the primary drugs for the treatment of anthrax, whereas दूसरे तरफ एंथ्रैक्स एक डिजीज है जो बेसिलस बैक्टीरिया से स्पोर्स जो काज होते हैं उनकी वजह से होती है, और ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेजर ड्रग है उसको कंट्रोल करने के लिए। सो अगर वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए सिप्रोफ्लॉक्सासिन को तो फिर एंथ्रैक्स कंट्रोल नहीं होगी। So what may be the measures to manage and prevent the spread of drug resistance in hospitals? क्या measures हैं हॉस्पिटल्स में ड्रग रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए या मैनेज करने के लिए? नंबर 1, isolation of infected patients that are potentially hazardous, कि जो infected patients हैं उनको आप अलहदा रखें ताकि उनसे किसी दूसरे को इन्फेक्शन ना हो। Second, early identification and prompt implementation of control measures, जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर लें और जो भी कंट्रोल मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करें। इफेक्टिव हैंड वॉशिंग मेजर्स, हैंड वॉशिंग मेजर्स यूज करें ताकि एक से दूसरे को इन्फेक्शन ना हो सके। न्यू थेराप्यूटिक अप्रोचेस, नई मेडिसिन को यूज करें, नई ट्रीटमेंट्स के मेथड्स यूज करें। ओवरऑल antibiotic resistant bacteria appear to be widely dispersed throughout the environment, and yet it is only in specialized environments that their presence appears to adversely affect human health and welfare. ठीक है जी। So overall antibiotic resistant bacteria जो हैं they appear to be widely dispersed throughout the environment, सारी environment में बहुत वसी पैमाने पे फैले हुए हैं, एंड येट इट इज ओनली इन स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट, लेकिन इसके बावजूद वो जगहें जहाँ पे इनकी वो बड़ी स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट्स होती हैं जहाँ पे ये एडवर्सली इफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को और वेलफेयर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे सैनिटेशन बेहतर नहीं है, तो जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम काज करते हैं। Antimicrobial resistance has become one of the most important public health issues faced by the industrialized world. It is estimated that the annual cost of infections caused by antibiotic-resistant bacteria in the United States is $4 to 5 billion, 4 से 5 अरब रुपया
एनुअल कॉस्ट है उन इन्फेक्शंस को कॉज कंट्रोल करने के लिए जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, एंड विद दिस वी फिनिश द कोर्स। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक आपने यूज किया था कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, ये बैक्टीरिया के लिए यूज किया था वर्ड? जी जी, मतलब है कि किसी केमिकल को यूज करना एज ए ट्रीटमेंट। ठीक है, जी सर। किसी केमिकल को यूज करना किसी ट्रीटमेंट के अगेंस्ट, ऑफ कोर्स किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही या किसी पैथोजन के अगेंस्ट ही उसे यूज करेंगे ना। तो जब आप बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई केमिकल यूज करते हैं तो चांस होता है कि उसमें म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, केमिकल्स एक केमिकल म्यूटेशन भी तो होती है ना। तो जब आप केमिकल उसको एक करते हैं तो उससे उसमें केमिकल म्यूटेशन हो सकती है। वो म्यूटेशन एक रीजन बन सकती है कि वो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप कर दे। जी सर। जैसे अभी ये देखें ना आप, इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें म्यूटेशन ही हो रही है ना, जो वेरिएंट्स आ रहे हैं इनकी कोविड के, ये इंडिया में आ रही है, ये उसमें आ रहा है, यूके का वेरिएंट आया है, साउथ अफ्रीका का आ गया है, वियतनाम का आ गया है। ये सारे म्यूटेशन ही हुई है ना, क्योंकि ये जी सर। जो वायरस है ये आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस में बड़ी क्विकली वो क्या कहते हैं ना, म्यूटेशन हो जाती है, इजीली हो जाती है। सो इस वजह से इसके वेरिएंट इतने आ रहे हैं। जी सर ठीक है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? Hello. Okay, so if you have no question, then we will be having the No. no class now onwards because our course is finished, and as far as the paper is concerned, that will be of course online. कब होगा, कैसे होगा, ये सारा कुछ मैं व्हाट्सएप पे आपसे शेयर कर लूँगा। अगर ज़रूरत हुई दरमियान में किसी दिन मीटिंग करने की तो मैं व्हाट्सएप पे आपसे टाइम सेट करके तो मीटिंग भी कर लूँगा। ठीक है? जी सर ठीक है। ओके जी, ठीक है थैंक यू सर। वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। Hello.